Okay, so next topic after anti-diabetic drugs for thyroid disorder, the second important topic in endocrine disorder. In thyroid disorder, we will divide the drugs into two parts. The drugs for hypothyroidism, and the second is the drugs for hyperthyroidism. So, drugs for hypothyroidism and drugs for hyperthyroidism. In hypothyroidism, simply thyroid hormone replacement therapy. So, thyroid hormone replacement. In thyroid hormone replacement, we have the two choice. One is T4, one is T3. So, one is T4, the second one is T3. So, दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन T4 एंड T3? तो हाइपोथायरॉयडिज्म में आप दोनों यूज कर सकते हैं डेफिनेटली, बट एग्जैक्टली इफ यू नो द डिफरेंस तब आप बता पाएंगे कि कौन सा सही है, कौन सा यूज करना चाहिए. सो इन T4 एंड T3 व्हाट इज द डिफरेंस? T4 is the circulating form. T4 is the circulating form. T3 is the active form. Circulating form and active form. The second important. T4 is longer. T3 is shorter. T4 is slower. T3 is faster. T4 is safer. T3 there is risk of arrhythmia. Arrhythmia's risk is there, or you can say the risk of toxicity, right? Toxicity का risk है, arrhythmias due to toxic. So toxicity risk is there. So T4 and T3 there are two forms. तो अगर T4 T3 की बात करें तो दिस इज द डिफरेंस इन द T4 एंड T3. तब अगर आप इन दोनों को चेक करोगे तो बाई दिस डिफरेंस यू कैन सी कि T4 इज सेफर एंड लोंगर, T3 इज शॉर्टर, फास्टर, बट देर इज रिस्क ऑफ एरिथमिया. Now T4 is available in two form. It is available in oral as well as parenteral both form. So we use or we prefer the T4 only. क्या यूज करते हैं हम? T4 यूज करते हैं. So whether hypothyroidism, generally to treat the hypothyroidism, so treatment of hypothyroidism or the treatment of myxedema coma, चाहे एक्यूट सिचुएशन हो चाहे मेंटेनेंस थेरेपी हो, दोनों में T4 बेस्ट है, राइट? दोनों में हम T4 ही देते हैं. T4 जो है आपकी बॉडी में जाके T3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं T4 टू T3 कन्वर्जन और पेरिफेरल कन्वर्जन. सो T4 यूज कर रहे हैं ओरल और पेरेंटल दोनों रूट से. अगर एक्यूट सिचुएशन है तो पेरेंटली, नहीं तो फिर ओरल T4 जो हम बोलते हैं थायरोक्सिन, राइट? सो T4 और थायरोक्सिन, T4 और थायरोक्सिन that is used commonly. So what is the preferred drug in hypothyroidism? The preferred drug in hypothyroidism is T4. ये यूज करते हैं. T3 is the toxic, that's why T3 is not commonly used. T3 में टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यू कैन सी, इसलिए हम T3 यूज नहीं करते हैं. अगर T4 फेल हो जाए, सपोज इन मिक्सेडिमा कोमा अगर T4 नहीं काम कर रहा है, देन वी विल गिव द T3. तो फिर आप T3 ट्राई करोगे, अदरवाइज वी डोंट यूज द T3. So triiodothyronine, T3 is the triiodothyronine. Triiodothyronine is not commonly used. The reason is it is toxic, risky, arrhythmia's risk is there. But fast है तो emergency में you can give this one also, but preferred नहीं है, choice of treatment नहीं है. तो ये तो हो गया डिफरेंस. अब T4 यूज करते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी में. जब भी हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट आएगा वी गिव द T4, राइट? फिर हम आफ्टर 3 वीक्स वी विल अगेन चेक कि भैया कितना थायराइड लेवल है, उसके अकॉर्डिंगली वी विल एडजस्ट द डोज, राइट?
तो ये तो हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट, द ड्रग्स फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। द ड्रग्स फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म, ये मेनली पूछते हैं ड्रग्स फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। देन वी हैव different categories. The first category is the drugs which decrease the thyroid hormone synthesis. The drugs which decrease the thyroid hormone synthesis, तो जो हार्मोन के सिंथेसिस को ही कम कर दे, हार्मोन के सिंथेसिस को कम कर रहे हैं। These drugs are called as thioamides. These drugs are called as thioamides. How they are acting? These are acting via thyroid peroxidase enzyme inhibitor. Thyroid peroxidase enzyme inhibitor, inhibiting the thyroid peroxidase enzyme, so they decrease the T4 T3 synthesis. So मोनोआयोडाइड है, डाईआयोडाइड है, मोनो एंड डाई ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ट्राईआयोडो और टेट्राआयोडोथायरोनिन। तो वो प्रोसेस क्या है, थायराइड पेरोक्सिडेशन। तो पेरोक्सिडेशन इनहिबिशन, बिकॉज ऑफ दैट दिस ड्रग्स डिक्रीज द थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। तो इनको हम बोल रहे हैं थायोएमाइड्स। कौन सी ड्रग्स हैं इसके अंदर आपके पास हैं, जैसे कि कार्बिमाजोल। कार्बिमाजोल इज द प्रो ड्रग इन एक्टिव फॉर्म। कार्बिमाजोल ही कन्वर्ट होता है मैथिमाजोल में, बट मैथिमाजोल इज सेपरेटली अवेलेबल। दोनों सेम ग्रुप की ड्रग है। कार्बिमाजोल इज प्रो ड्रग, मैथिमाजोल is the active form. If you give carbimazole, it will convert to मैथिमाजोल, वो मैथिमाजोल में ही कन्वर्ट हो रहा है जाके। एंड द सेकेंड इज प्रोपाइल थायोयूरेसिल। प्रोपाइल थायोयूरेसिल, जिसको कि हम शॉर्ट में बोल देते हैं PTU, प्रोपाइल थायोयूरेसिल। तब देखिए, एक आपके पास हो गया कार्बिमाजोल या मैथिमाजोल बोल दीजिए, दूसरा आपके पास हो गया प्रोपाइल थायोयूरेसिल। दोनों में डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, एक ही चीज है। अब डिफरेंस देखिए, सबसे पहले कार्बिमाजोल, मैथिमाजोल, दीज आर longer, these are longer, PTU is shorter। तो डोज बार बार देना पड़ेगा PTU का। कार्बिमाजोल का दिन में एक बार देना है, PTU को दिन में 3 बार देना है, राइट। सो लॉन्गर एंड शॉर्टर। देन कार्बिमाजोल, दीज आर कार्बिमाजोल और मैथिमाजोल अगर कंपैरिजन करेंगे PTU से, सो स्लोवर, PTU इज फास्टर। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कार्बिमाजोल एंड मैथिमाजोल, दीज आर सेफर, लेस रिस्क ऑफ, किस चीज का लेस रिस्क है, लेस रिस्क ऑफ एग्रेनुलोसाइटोसिस, लेस रिस्क ऑफ लिवर टॉक्सिसिटी, लेस रिस्क ऑफ एग्रेनुलोसाइटोसिस, लेस रिस्क ऑफ लिवर टॉक्सिसिटी। अगर PTU की बात करें, दैट इज लेस सेफ। इट मीन्स अगर दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो एग्रेनुलोसाइटोसिस का रिस्क और लिवर टॉक्सिसिटी का रिस्क ज्यादा किस में, PTU में। सो मोर टॉक्सिक, मोर टॉक्सिसिटी रिस्क है किसमें, PTU में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कार्बिमाजोल कैन क्रॉस द प्लेसेंटा इजीली, कैन क्रॉस प्लेसेंटा easily, because of that it can reach to fetus and the risk of teratogenicity is there। teratogenic है, teratogenic। in PTU it cannot easily cross, so not or less crossing the placenta, less crossing the placenta और teratogenic नहीं है, not teratogenic, टेराटोजेनिक नहीं है। सबसे बड़ा एडवांटेज है PTU का प्रेगनेंसी के टाइम पे, राइट। टेराटोजेनिक है, क्या कर सकता है, इट कैन कॉज द क्यूटिस एप्लेजिया, और क्या कर सकता है, इट कैन कॉज कोएनल एट्रेजिया,
ईसोफेजियल एट्रेजिया, ये सब टेराटोजेनिसिटी है। सो टेराटोजेनिक ड्रग है कार्बिमाजोल मेथिमाजोल। दैट्स वाई बाय दिस कंपैरिजन नाउ यू कैन इजीली टेल कि कार्बिमाजोल एंड मेथिमाजोल these are commonly used, most commonly used antithyroidism. These are most commonly used antithyroid drugs, but during first trimester of pregnancy, अगर प्रेगनेंसी की बात करें वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, देन वी यूज द पीटीयू। तो नॉर्मली मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीथायराइड ड्रग तो कार्बिमाजोल मेथिमाजोल, लेकिन अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्पेशली, देन पीटीयू। तो एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी छोड़ दो, बाकी प्रेगनेंसी में भी अगर आप कहीं सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, देन आई वुड से कि कार्बिमाजोल मेथिमाजोल इज द प्रीफर्ड वन। इसके अलावा एक और डिफरेंस है कि दिस कार्बिमाजोल मेथिमाजोल इट इज नॉट इनहिबिटिंग द पेरिफेरल कन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड एज पेरिफेरल कन्वर्जन, so peripheral conversion inhibition T4 to T3, that peripheral conversion inhibition is not seen in the carbimazole. Peripheral conversion inhibition that is seen in the PTU में पेरिफेरल कन्वर्जन इनहिबिटर है तो T4 को T3 में कन्वर्ट होने से रोक रहा है, इसीलिए नॉट यूज्ड इन थायराइड स्टॉर्म मैनेजमेंट, इट इज यूज्ड। तो थायराइड स्टॉर्म में कौन सी यूज करेंगे? पीटीयू। हाइपरथायरॉयडिज्म में मेनली कौन सी ड्रग यूज करेंगे? कार्बिमाजोल मेथिमाजोल। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में एंटीथायराइड बेस्ट कौन सी है? पीटीयू। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज ड्रग्स। और साथ में हमने टॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट भी बता दिया, एग्रेनोसाइटोसिस, लिवर टॉक्सिटी का रिस्क है, राइट, और टेराटोजेनिसिटी का रिस्क है। तो ये होगी फर्स्ट ग्रुप, द ड्रग्स विच डिक्रीज द थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। नाउ सेकंड ग्रुप, द सेकंड ग्रुप इज द ड्रग विच इनहिबिटिंग द आयोडीन अपटेक, द ड्रग्स विच इनहिबिट द आयोडीन अपटेक। ऐसी ड्रग जो आयोडीन अपटेक को रोक रही है, मीन्स आयोडीन अपटेक नहीं हो रहा है, तो इससे क्या होगा? अगर आयोडीन अपटेक नहीं होगा तो अगेन अल्टीमेटली थायराइड नहीं बन पाएगा, राइट, थायराइड हार्मोन नहीं बन पाएगा। सो दीज आर कॉल्ड एज आयोनिक इनहिबिटर्स, सो आयोडीन कपलिंग को रोक रहे हैं, आयोडीन इनहिबिटर्स हैं। कौन सी ड्रग्स हैं? ये ड्रग्स जो हैं ये बेसिकली हम केमिकल्स यूज नहीं कर रहे हैं, बट आपको जस्ट पता होना चाहिए। तो जैसे कि थायोसाइनेट्स, परक्लोरेट्स, नाइट्रेट्स। जैसे थायोसाइनेट्स की बात करें तो ये कैबेज में मिलता है, in the cabbage. So why the excessive cabbage diet may leads to hypothyroidism? Because of this. So iodine uptake कम कर रहे हैं, ionic inhibitors बोल रहे हैं, बिकॉज ये आयन्स हैं जो कि आयोडीन अपटेक को रोक रहे हैं। प्रैक्टिकली वी डोंट यूज दिस ड्रग्स, क्योंकि ये जो हैं आयन्स हैं दे आर नॉट सेफ, राइट, सेफ नहीं है, तो प्रैक्टिकली हम इनको यूज नहीं कर रहे हैं। देन कम्स टू द थर्ड कैटेगरी। द थर्ड कैटेगरी इज the drugs which is inhibiting the thyroid hormone release, so ऐसी ड्रग जो थायराइड हार्मोन के रिलीज को सप्रेस कर रही है, these drugs are also called as thyroid constipators, जो कि थायराइड को कॉन्स्टिपेशन कर दे। so थायराइड कॉन्स्टिपेटर्स कौन सी ड्रग्स हैं इसमें जैसे कि सोडियम आयोडाइड,
पोटासियम आयोडाइड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है वो है ल्यूगोल्स आयोडीन। ल्यूगोल्स आयोडीन, सो ल्यूगोल्स आयोडीन इज द इंपॉर्टेंट ड्रग जो कि हम यूज कर रहे हैं। ल्यूगोल्स आयोडीन, ल्यूगोल्स आयोडीन इज 5% आयोडीन, 5% आयोडीन in 10% potassium iodide solution, 5% आयोडीन in 10% पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ये है आपका ल्यूगोल्स आयोडीन, राइट। ल्यूगोल्स आयोडीन इज वेरी फास्ट एक्टिंग। अगर हम बात करें उसकी तो इट इज़ वेरी फास्ट एक्टिंग, और यू कैन से फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी थायरॉयड ड्रग, फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी थायरॉयड ड्रग। फास्टेस्ट एक्टिंग क्यों है? बिकॉज ये बने हुए जो ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड हार्मोन है उसको भी रिलीज नहीं होने दे रहे, तो ऑलरेडी जो बना हुआ है वो जो है काम कर सकता है, बट यहाँ पे तो ये जो बना हुआ है उसको रिलीज ही नहीं होने दे रहे, इसलिए दीज आर द फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी थायरॉयड ड्रग ल्यूगोल्स आयोडीन। मेन पर्पज क्या है, कहाँ पे मेनली इन ड्रग को यूज करते हैं ल्यूगोल्स आयोडीन को? सो मेनली इट इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पज? इट इज यूज्ड फॉर प्री ऑपरेटिवली, प्री ऑपरेटिवली सर्जरी से पहले प्री ऑपरेटिव हम यूज करते हैं। उसका क्या फ़ायदा है प्री ऑपरेटिवली? कि इट इज कॉजिंग द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द नोड्यूल, राइट। नोड्यूल को श्रिंक कर रहा है, सो श्रिंकेज ऑफ नोड्यूल, नोड्यूल को श्रिंक कर दिया तो उससे क्या हो गया, साइज छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया तो उसको ऑपरेट करना इजी है, तो मेक इट इजीली ऑपरेबल। तो श्रिंकेज ऑफ द नोड्यूल दैट इज प्री ऑपरेटिवली बाय द ल्यूगोल्स आयोडीन। सो ल्यूगोल्स आयोडीन आप पिला देते हैं पेशेंट को, श्रिंकेज ऑफ नोड्यूल है, बहुत फास्ट इफेक्ट है, ये प्री ऑपरेटिव इसका रोल हो गया। अब बात करें रिस्क क्या है, व्हाट इज द रिस्क विद ल्यूगोल्स आयोडीन? रिस्क विद ल्यूगोल्स आयोडीन देयर आर टू इंपॉर्टेंट रिस्क। वन इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिस्क इज द म्यूकोसाइटिस, जितना भी म्यूकोसा है म्यूकोजा में इरोजन हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट, सो वन इज म्यूकोसाइटिस। तो जब पेशेंट को आप ल्यूगोल्स आयोडीन पिला रहे हैं तो उसको माउथ अल्सर्स हो सकते हैं, ईसोफेजाइटिस हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, तो म्यूकोसाइटिस का रिस्क है। दूसरा, काफ़ी पेशेंट्स को आयोडीन एक्सेस हो जाता है बॉडी में, उसको हम बोलते हैं आयोडिज्म। आयोडिज्म इज द आयोडीन एक्सेस इन द बॉडी, आयोडीन एक्सेस। तीसरा, आयोडीन एलर्जी भी होता है, काफ़ी पेशेंट्स को आयोडीन एलर्जी, आयोडीन एलर्जी, ये भी हम पेशेंट से हिस्ट्री ले लेते हैं कि आयोडीन एलर्जी तो नहीं है, पहले कभी ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसीलिए जब रेडियो एक्टिव मीडियाज़ भी हम यूज करते हैं ना, सपोज दिस रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडियाज़, तो जब रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडियाज़ भी यूज करते हैं तो आप हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि आयोडीन एलर्जी तो नहीं है, राइट, बिकॉज द सेम प्रॉपर्टीज इन विद द इम्पोर्टेंट है रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडियाज, आयोडीन कंटेनिंग रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडिया, आयोडीन कंटेनिंग रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडियाज, जैसे कि आयोपेनोइक एसिड, जैसे कि आयोपोडेट, so iopenoic acid, iopodate, these are iodine containing radio contrast medias, they have the similar property, right, इनका मैकेनिज्म सेम है आयोडीन कंटेनिंग रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडियाज। इसलिए जब भी आप किसी पेशेंट को आयोडीन कंटेनिंग रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडियाज देना चाहते हैं सीटी स्कैन से पहले, तो आप उससे थायराइड की हिस्ट्री पूछते हैं, राइट। सो दीज आर ऑल्सो कोजिंग द सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है थायराइड के पेशेंट्स में। तो ये हो गया थर्ड वन। द फोर्थ इज डिस्ट्रैक्शन ऑफ द थायराइड टिश्यू, डिस्ट्रैक्शन ऑफ थायराइड टिश्यू, ऐसी ड्रग जो थायराइड टिश्यू को ही डिस्ट्रॉय कर दे। तो डिस्ट्रैक्शन ऑफ द थायराइड टिश्यू, इसमें कौन सी ड्रग है आपके पास? रेडियो एक्टिव आयोडीन, इसमें है रेडियो एक्टिव आयोडीन है। इसमें कौन सी ड्रग है? जैसे कि आयोडीन 131,
आयोडीन 125, आयोडीन 123, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज आयोडीन 131, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज आयोडीन 131. दीज आर द रेडियो एक्टिव आयोडीन्स. अब देखिए इस रेडियो एक्टिव आयोडीन्स की बात करें तो आयोडीन 131 इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड. The half-life of this iodine 131, the half-life of this iodine 131 is 7 days और 1 week. तो 1 week पे हम रिपीट करते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन, आयोडीन 131. अगर हम बात करें कि हाउ इट इज एक्टिंग, कैसे एक्ट करेगा, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि रेडियो एक्टिविटी की वजह से क्या होगा, ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी, ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी हम बात करें तो अल्फा, बीटा, गामा ये रेज निकलती हैं, एक्स रेज. तो यहाँ पे बीटा रेज, एक्स रेज ये दो मेन हैं विच इज कोजिंग मोर डिस्ट्रैक्शन. बीटा रेज आर हैविंग लेस पेनिट्रेटिंग पावर, बीटा rays are having less penetrating power, so less penetration, more distraction. X-rays are having more penetration power, more penetration and less distraction, more penetration and less distraction. तो less penetration और more distraction, so कौन सी रेज डिस्ट्रॉय कर रही है, बीटा रेज. बीटा रेज जो है थायरॉइड टिश्यू को डिस्ट्रॉय करती हैं. कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर, कहाँ यूज करेंगे, इट इज यूज्ड इन द पेशेंट्स हु हैव द, या तो लार्ज नोड्यूल हो, लार्ज नोड्यूल, राइट, नोड्यूल का साइज बहुत बड़ा हो, या फिर थायरॉइड मैलिग्नेंसी हो, कैंसर का नोड्यूल है, थायरॉइड मैलिग्नेंसी, तो या तो बहुत बड़ा साइज का नोड्यूल है या फिर मैलिग्नेंट है, तो रेडियो एक्टिव आयोडीन हम यूज करते हैं. इंपॉर्टेंट कौन से पेशेंट्स के लिए है, ये इंपॉर्टेंट है ओल्डर पेशेंट्स के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर द ओल्डर पेशेंट्स, क्योंकि यंग पेशेंट्स में अगर आप रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे तो रिस्क है सेकेंडरी मैलिग्नेंसीज का. सो इन ओल्डर पेशेंट्स, सो मोर देन 40-45 ईयर्स होना चाहिए तभी आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट. दूसरा प्री ऑप भी यूज कर सकते हैं, प्री ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव भी इनको यूज कर सकते हैं, राइट. पोस्ट ऑपरेटिव भी यूज कर सकते हैं, ताकि जो बचा कुचा कुछ अगर है मैलिग्नेंसी का पार्ट तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो पोस्ट ऑपरेटिव भी आप यूज कर सकते हैं. प्री ऑपरेटिव यूज करने का फ़ायदा ये भी है कि प्री ऑपरेटिवली अगर आपने इसको दिया तो इससे जो है ब्लड वेसल्स जो हैं वो एटीन्यूएट हो रही हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस कम होते हैं, राइट. सो डिक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. तो नोडुल साइज अगर बड़ा है तो हम प्री ऑपरेटिवली देंगे ताकि ब्लीडिंग के चांसेस कम होंगे ये साथ में देने से. यूथायरॉइड में कन्वर्ट करने के लिए तो ल्यूगोल्स आयोडीन बेस्ट था, लेकिन ब्लीडिंग के चांसेस कम कर रहा है और जो है प्री ऑपरेटिवली, तो वो फिर आप रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज कर सकते हैं, राइट. सो ओल्डर पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है. कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन यंग पेशेंट्स, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन यंग पेशेंट्स सबसे पहला, तो जैसे कि लेस देन 40-45 वी डोंट यूज. दूसरा इन प्रेगनेंसी, रिस्की हो गया. तीसरा लैक्टेशन, ड्यूरिंग लैक्टेशन, तो ये सब हो गया कॉन्ट्रा इंडिकेशंस. तो यंग में नहीं देना है, यंग में नहीं देना है, ओल्डर पेशेंट्स के लिए है रेडियो एक्टिव आयोडीन. अब आता है फिफ्थ वन, द ड्रग्स विच आर इनहिबिटिंग द पेरिफेरल कन्वर्जन. So peripheral conversion, peripheral conversion inhibitors, peripheral conversion inhibitors, ऐसी ड्रग्स जो कि पेरिफेरल कन्वर्जन को रोक रही है. पेरिफेरल कन्वर्जन किसको बोल रहे हैं हम, T4 to T3 कन्वर्जन, T4 to T3, और ये उसको रोक रही है. सो इनहिबिटिंग द T4 to T3 कन्वर्जन. और आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये ड्रग्स जो हैं these are inhibiting the 5-deiodinase enzyme, inhibiting the 5-deiodinase enzyme inhibition, right. कौन सी ड्रग्स हैं,
तो इसके अंदर पेरिफेरल कन्वर्जन इनहिबिटर के लिए आपके पास ड्रग्स हैं। सबसे पहले ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है PTU, प्रोपाइल थायोरेसिल। देन बीटा ब्लॉकर्स लाइक प्रोप्रेनोलोल, बीटा ब्लॉकर लाइक प्रोप्रेनोलोल। देन एमियोडारोन, एमियोडारोन भी ये काम करती है। एमियोडारोन इज एरिथमिया ड्रग दैट इज ऑल्सो हैविंग दिस प्रॉपर्टी, सो एमियोडारोन भी ये काम कर सकती है। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो ये सारी ड्रग्स जो हैं दे कैन इनहिबिट द पेरिफेरल कन्वर्जन T4 to T3 कन्वर्जन। सो ऑल दीज ड्रग्स कैन बी यूज्ड फॉर, अगर हम बात करें बिकॉज ये पेरिफेरल कन्वर्जन को इनहिबिट कर रही हैं, सो ऑल कैन बी यूज्ड इन थायराइड स्टॉर्म मैनेजमेंट, ऑल कैन बी यूज्ड इन थायराइड स्टॉर्म मैनेजमेंट। तो जो थायराइड स्टॉर्म है, जो अक्यूट कंडीशन है थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस क्राइसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस क्राइसिस मैनेजमेंट, वहाँ पे आप इसको यूज करोगे। सो अक्यूट थायराइड कंडीशन। अगर सिंपली आपसे पूछें व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अक्यूट थायराइड स्टॉर्म, देन ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस इज प्रोप्रेनोलोल। लेकिन अगर आपसे पूछें विच इज द बेस्ट एंटी थायराइड ड्रग फॉर दिस पर्पज, सो बेस्ट एंटी थायराइड ड्रग इज PTU। ओवरऑल बेस्ट तो है प्रोप्रेनोलोल, लेकिन बेस्ट एंटी थायराइड है PTU थायरोटॉक्सिकोसिस में। तो फर्स्ट ड्रग टू बी स्टार्ट इज प्रोप्रेनोलोल। सबसे पहले हम प्रोप्रेनोलोल स्टार्ट करते हैं और PTU साथ में देते हैं। प्रोप्रेनोलोल के फायदे क्या हैं? एक तो इट कंट्रोल द सिम्टम्स, क्योंकि थायराइड के सिम्टम्स क्या है? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, स्वेटिंग, वो सब कंट्रोल करेगा। दूसरा, इट इज इनहिबिटिंग द T4 to T3 कन्वर्जन। तो दोनों तरफ से इसका अच्छा इफेक्ट है प्रोप्रेनोलोल का। तो ओवरऑल ये है, लेकिन एंटी थायराइड में बेस्ट है PTU। बेस्ट एंटी थायराइड ड्रग इज PTU, बेस्ट ओवरऑल ड्रग ऑफ चॉइस इज प्रोप्रेनोलोल। तो ये सारी ड्रग्स हो गई आपकी फॉर थायराइड डिसऑर्डर्स।